अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शहर लाहौर में बच्चों को अगवा करने का सिलसिला किस हद तक बढ़ चुका है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हरबंसपुरा के इलाके में 3 साला बच्चा जब अगवा होता है तो उसकी माँ और लवाहिकीन किस तरह का वावेला करते हैं। पुलिस इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कर रही है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। मेहरबानी है डैडी, मेरा बच्चा मैंने चाहिए। मेरा रियाना आ जाती, मैं क्या करूँगी? बच्चा अगवा कैसे होता है, वो मकाम है जहाँ पे वो माँ खड़ी होती है और वो देखती है कि बच्चा उसका यहाँ पे होता है और इस रास्ते से अगवाकार जो है उस बच्चे को लेकर जाता है। एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है, पुलिस को भी मिलती है, लवाहिकीन को भी मिलती है, क्योंकि इस इलाके में जिस तरह का ये एरिया, यहाँ पर किसी किस्म का कैमरा नस्ब नहीं है। यहाँ से दूर जाएं तो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है जो वहाँ पे लगी हुई है। सीसीटीवी फुटेज वहाँ से मिली है, वो कहाँ पे है ये हम जानने की कोशिश करें। इस रास्ते से होता हुआ, अच्छा इधर इथों गुजर के जाता है बच्चे ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਈਕ ਦੱਸੋ। हाँ जी इस रास्ते ते गुजर गया इस ते। अच्छा ये रास्ता है हाँ जी इधर गया, इधर से इधरों दी लेके जाता है हाँ जी बच्चे। इधर लेते जांदा मैं इंका ते लंघदा जी इंका ते। अच्छा ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇੰਕਾ ਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਰ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। अच्छा जी इस रास्ते तो आता है जी बच्चे ਨੂੰ ਲੈ हाँ के। जी इस रास्ते ते आंदा ते इवें इंका ते इस गली च ਜਾਂਦਾ है। ये वो वाली जगह है जहाँ पे पानी भी खड़ा हुआ है और बिल्कुल साथ ही उसके घर है और मुश्किल रास्ता है। 3 साल के बच्चे के लिए अकेले यहाँ से गुजरना मुमकिन नहीं है। बाजी दसो की होया बच्चे ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਏ? ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੀ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ नहीं आया, वो रुश्के पे बैठ गया है। अच्छा हाँ जी, मेरे मियाँ ने भी गया, मेरा ये अबू भी गए, नहीं इनको मिला वो। अच्छा जी ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ नहीं ਪਹਿਲੇ? नहीं नहीं देखिया। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 3 साल का छोटा जो है, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬੋਲ बहुत ਸਕਦਾ? छोटा। नहीं मम्मा पापा सिर्फ थोड़ा जिहा सिर्फ मम्मा पापा रो के 5 चीज मांगदा साडे कोल, पेशाब विच कर दे, नहीं दसदा मैनू। अच्छा बहुत छोटे हैं इस तरह ही। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਛਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ? ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਅੰਮਾ ਵੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੌੜ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਮ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝੇ ਹੁੰਦਾ ਚਾਚੂ ਵੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜਿਆ ਨਾ ਗਲੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਆਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਹੈ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਮੋਢੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਗਾਰਡ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਰੋਡ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਰਸ਼ਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਵਕਤ ਕੀ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? 7 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਸਵੇਰ 7 ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ 7 ਦਾ। ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਪਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਸਤਰੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕਣੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਜਾਗਦੀ ਪਈ ਗਲੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ,
ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਵੇਲੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਾਇਨ ਸਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇੱਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਵਾਲਾ। 3 ਬੇਟੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਾਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਹਾਰਸਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਵੀ ਕੋਲ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਨੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਗਿਆ ਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਪੁਲਿਸ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰੋਏ ਪਿੱਟੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ 6-6 ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫੀਡਰ ਪੀਂਦਾ, ਪਾਣ ਰੋਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੋ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ। ਫਿਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੂਜੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੋ। ਭਾਈ ਸੁਬਹ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਰੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਦੇ ਜਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਟਦੀ ਪਈ ਏ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਇਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੋ ਪਾਇਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਦਰ ਪਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਾਜੀ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? एक मिनट बैठ। मेरा रियाना आ जाती, मैं नहीं करूँगी। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼। ਬਸ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ करना है, इस तरह गली च कल्ला जाता है ना। इसी इलाके में हरबंसपुरा के इलाके में कुछ अर्सा पहले चंद माह का एक बच्चा वो भी अगवा होता है और उसको एक जगह पे फ़रोख्त कर दिया जाता है। फिर कुछ अरसे के बाद एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या होता है कि 3 साला बच्चे को अगवा कर लिया जाता है। दोनों मुकदमात दर्ज होते हैं और दोनों बच्चों को मुख्तलिफ औकात में बाजियाब भी करवा लिया जाता है। इमरान साहब, आप और आपकी टीम जो है वो काबिल तारीफ़ काम किया। उन्होंने बच्चों के अगवा के मामलात लाहौर में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। जो हरबंसपुरा से बच्चा अगवा हुआ, सिर्फ उसकी 3 साल उम्र थी। CCTV फुटेज भी सामने आई और उसमें देखा जा रहा था कि अगवाकार बच्चे को गोद में उठा के लेकर जाता है। मुमकिन कैसे हुआ कि ना तो अगवाकार की कोई शनाख्त थी, ना उसकी शक्ल बज़ाहिर इस तरह से ट्रेस हो रही थी? कैसे
केस को सॉल्व किया गया? थैंक यू वेरी मच। बड़ा ही चैलेंजिंग आपने बताया, जैसे हमारे लिए बड़ा अलार्मिंग और चैलेंजिंग केस था। इसमें हमारी टीम्स ने जब इनिशियली स्टार्ट किया तो कोई हमारे पास टेक्निकल लीड अवेलेबल नहीं थी। ये एक लोअर मिडिल क्लास एरिया है और उसमें नॉर्मली लोग सीसीटीवी कैमरास और ये भी अवेलेबल नहीं थे। घरों के बाहर जो प्राइवेट कैमरास होते हैं या शॉप्स के कैमरास होते हैं तो उनमें कोई कैमरा ट्रैक या कैमरा लीड अवेलेबल नहीं थी। लेकिन हमारी जब टीम्स ने अपने तौर पे डिफरेंट रूट्स को चेक करते हुए मेन रूट्स पे जब आए तो उसमें हमें एक फुटेज मिली जो उसकी बैक साइड से नज़र आती है, जिसमें एक बच्चे को उठा के एक शख्स जो है वो जा रहा है तेज़ी के साथ। तो वो जब हमने देखा और उसको जब हमने ट्रैक किया तो वो एक रिक्शे में बैठता है और वो शेल का एक पंप है, वहाँ पे उनकी दोबारा फुटेज मिलती है। तो ये शाहपुर कांजरा की तरफ इशारा कर रही थी, उस तरफ ये लोकेलिटी की तरफ जा रहा है और जहाँ से ये बच्चा हुआ होता है वो हरबंसपुरा का एरिया है। तो हमारा टारगेट एरिया शिफ्ट हुआ हरबंसपुरा से शाहपुर कांजरा की तरफ। जब ये ज़ीरो इन हमने किया तो उस एरिया बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था और उसमें फिर हमने गलियों को डिवाइड किया और 1.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को हमने पहले ज़ीरो इन किया और गलियों में अपनी टीम्स लगाई जो ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भी काम कर रही थी और कैमरास की लीड्स भी देख रही थी, क्योंकि इसका इंसिडेंट जो है वो गुजरे हुए कोई 10-11 दिन हो चुके हुए थे और हमारी टीम्स मुस्तकिल काम कर रही थी। तो हमें बिलाखिर इस 10वें दिन एक लीड मिली जिसमें कैमरा में एक नाई के घर के बाहर बच्चा नज़र आता है कि वो एक बंदे ने उठाया हुआ है और हुलिया सस्पेक्ट का और बच्चे का मिलता जुलता था। हमने उस नाई को जब शामिल तफ्तीश किया तो उसने बताया कि ये कटिंग कराने के लिए एक शख्स मेरे पास लेके आया था, उसने अपने घर उसका घर इंडिकेट किया। उस तक फिर हम पहुँचे और उसके घर को रेड किया गया तो उसके अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा सही सलामत बरामद हुआ और मुलज़म शान जो है वो अरेस्ट हुआ। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, हीनियस क्राइम है एक बच्चे को अगवा करना। जब एफआईआर दर्ज होती है और आपके पास केस आता है तो फिर इसको किस तरह से जो है वो मॉनिटर किया जाता है? क्योंकि हमने अक्सर देखा कि अगर इस तरह कोई हीनियस क्राइम होता है तो आप खुसूसी टीम तश्कील देते हैं और उस पर यकीनन कामयाबी भी होती है। तो फिर इसको कैसे जो है वो करते हैं? आपके बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि एक बच्चा जो ना अपना नाम बता सकता है ना अपने वालिदैन का बता सकता है, तो उसको इस तरह से ट्रेस आउट करना। देखिए उसमें हमारी जो बेस्ट पॉसिबल टीम्स होती हैं, इस तरह के जो केसेस हैं उस पर हम वो लगाते हैं और उसमें हमेशा आप इन्वेस्टिगेशन में देखें कि मल्टीपल लीड्स पे काम करना पड़ता है। अगर आप कैमरास की साइड पे कर रहे हैं, जियो फेंसिंग की साइड पे कर रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे कर रहे हैं, कोई आपको लीड मिलती है और किसी गाड़ी की लीड मिलती है, मोटरसाइकिल की मिलती है, तो हर एक पे अलग-अलग आपको काम करना पड़ता है। तो कोई भी चीज़ जो अनइम्पॉर्टेंट नहीं होती और उसको हम लीव आउट नहीं करते प्रोबेबिलिटीज़ में से, तो उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करने से, परसिस्टेंस से ये रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और इसमें पर्सनल मॉनिटरिंग ऑफिसर्स की ज़रूर होती है कि वो डेली बेसिस पे स्टीयर करते हैं कि आप इस डायरेक्शन में जाएं, आप इस डायरेक्शन में जाएं, और हर टीम के अपने टास्किंग होती है। तो बस अल्लाह फिर मदद करता है। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर उसका सिला मिलता है। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, इस बात का भी इम्कान है जो अगवाकार जो मुलजिम पकड़ा गया, ना तो ये शादीशुदा था, ना इसकी बीवी है, ना कोई ऐसा इसको बच्चे की ज़रूरत थी, तो ये हम इसका इम्कान इन फ्यूचर में ज़ाहिर कर सकते हैं कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कि हो सकता है ये बच्चे फ़रोख्त करने वाला गिरोह? जी, ये दो प्रोबेबिलिटीज़ हमारी नॉर्मली देखी गई हैं। एक ये है कि इससे बैगिंग का काम कराते हैं बच्चों से, एक गिरोह फ़कीरों का ऐसा भी है जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं। एक ये है कि जो बेचते हैं बच्चों को। ये इस केस में ये ड्रग एडिक्ट है, अनमैरिड है, अकेला रहता है और ड्रग यूजेज करता है और उसमें कोई कमाता नहीं है कहीं से, तो लिहाजा इसके पास जब पैसे शॉर्ट होते हैं तो वो किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकते हैं ऐसे लोग। तो उसमें ये ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि बच्चे को फ़रोख्त कर रहे हैं। इस केस में भी हमें इसी तरफ इशारा मिलता है।
ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ठीक है मैं सर। कुछ रोज़ पहले जब हमने एक प्रोग्राम किया कि थाना हरबंसपुरा के इलाके में एक 3 साला बच्चे को अगवा कर लिया जाता है, तो उसकी माँ टेलीविज़न स्क्रीन पे इसी प्रोग्राम में दुहाइयाँ देती हुई दिखाई देती है। जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन विंग को पता चलता है कि वाकई एक हीनियस क्राइम हुआ है और एक शख्स इस 3 साला बच्चे को अगवा करके ले गया है, तो फिर ये टीम मुतहरिक होती है और सिर्फ चंद रोज़ में इस बच्चे को बाजियाब करवा लिया जाता है। इस वक्त ये एक ख़ानदान की तरह यहाँ पे खड़े हैं, पुलिस एहलकार भी खड़े हैं, वो पुलिस एहलकार जिन्होंने इस केस को हल करने के लिए दिन रात मेहनत की, और वो ख़ानदान भी है जिनका जिगर का टुकड़ा, लखते जिगर उनका चंद रोज़ के बाद 3 साला बच्चा मिल जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हरबंसपुरा आसिफ साहब से, क्योंकि इनकी इस केस में बहुत मेहनत रही, दिन रात इन्होंने कोशिश की और बच्चे को बाजियाब करवा लिया। आसिफ साहब, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और आप पे तनकीद भी हो रही थी, माँ और दीगर जो घर वाले थे, बड़ा उनको जो था दुख था कि उनका बच्चा कहाँ चला गया, लेकिन आपको कामयाबी मिली जो वाकई आप तारीफ़ के काबिल हैं। बताइए कि क्या मुलजिम से इंटेरोगेट किया गया और कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बड़ा चैलेंजिंग हमारे लिए टास्क था। पहले भी आपने इंटरव्यू किया, हमने आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर की थी, कुछ चीज़ें फिर हमने नहीं आपके साथ कंप्लीट शेयर की। हम ऑलरेडी हमारी टीम सारी काम कर रही थी इस केस पे, और जिस दिन ये वकूआ हुआ है उस दिन हमारे पास एक पिक्चर थी, एक सीसीटीवी फुटेज हमें मिली, उसके अलावा हमारे पास कोई क्लू नहीं था। ठीक है। सम टाइम ऐसे हो जाता है कि इस तरह का बच्चा अगवा होना, कोई फैमिली डिस्प्यूट भी सामने आ जाता है। इधर इस केस में ऐसा भी कुछ नहीं था। ठीक है। ये एक बिल्कुल प्योर अगवा था, सिंपल उसका ऑब्जेक्टिव था कि बच्चा उठा के नामालूम बंदा चला गया। लेकिन हमने उस पर काम शुरू किया, हमने मेहनत की। सीसीटीवी फुटेज से हम इब्तदाई तौर पे रसूलपुरा के इलाके तक हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ तक वो नामालूम शख्स मुलज़म बच्चे को लेके आया हुआ है। उस एरिया में फ़र्दर काम करना हमारे लिए आसान नहीं था। छोटी छोटी गलियाँ थीं, बेशुमार गलियाँ थी, और कोई ऐसा वो सोसाइटी भी नहीं थी कि जहाँ पे हर जगह पे कैमरे लगे हों। तो उस एरिया में काम करने के लिए हमने जो टीम्स बनाई वो मेरे साथ इधर मौजूद हैं, इन सब ने हमारे साथ मेहनत की, और वहाँ पे हमें एक कैमरा से ये जो मुलज़म है ये एक घर का दरवाज़ा नॉक करते हुए दिखाई दिया। उस घर में से एक शख्स बाहर आता है, वो इससे कुछ बात करता है, फिर ये वहाँ से वापस आ जाता है, और वो जो उस घर का बंदा है, उस घर का जो शख्स है, वो भी उसी रास्ते पे उसके साथ चलना शुरू कर देता है। ये एक हमें बड़ी उम्मीद वाली एक हमारे पास क्लू था, और फाइनली हमने फिर उस घर वाले को जब इंटेरोगेट किया तो हमें पता चला बेसिकली वो एक बार्बर था, उसकी बार्बर शॉप थी। ठीक है। और इस मुलज़म ने ये जो बच्चा है इसकी कटिंग करवाने के लिए, इसका हुलिया चेंज करने के लिए उस तक रब्ता किया, और यही एक उसकी मूवमेंट से हमें केस ट्रेस करने में अल्लाह पाक ने मदद की। ठीक है। आसिफ साहब, ये बताइएगा कि आपको डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो इमरान किशोर हैं उन्होंने फौरी तौर पे नकद इनाम और तारीफ़ी असनाद का भी ऐलान किया है। अपने टीम मेंबर्स का नाम लीजिए जिन्होंने इस केस को सॉल्व करने में, बच्चे को बाजियाब करवाने में पूरी मदद की। इसमें कोई शक नहीं, हमारे सीनियर ऑफिसर हमेशा हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं और हमें गाइड भी करते हैं, और हम जवाब दे भी हैं उनको, और आवाम को भी हम जवाब दे हैं। इनका कोई भी मसला मसाइल है, ये पुलिस के पास ही इन्होंने आना है और हमने ही हल करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी हल किया। इस सारे काम में, इस सारे टास्क में मेरे साथ नवीद, नदीम ASI, औरंगज़ेब, अब्बास, अज़हर, अख्तर, इसके अलावा सलमान, अदील, ये सारी मेरी टीम थी जिन्होंने आपके सामने अभी मौजूद भी है। इन सब ने बहुत मेहनत की मेरे साथ, इनको जैसे जैसे समझाया, जिस जिस तरीके से इनको गाइड किया, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वैसे काम किया,
और अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी अता की। ठीक है, ये माइक दीजिएगा। अब हम बात करते हैं जी उस माँ से। इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया था कि जब बच्चा लापता हुआ, अगवा हुआ, तो जब मिल नहीं रहा था तो यही माँ जिसका 3 साल का बच्चा अगवा हो गया था तो बड़ी दुहाइयाँ और बड़ी अपीलें करती रही है। मैं बहुत दुखी हूं भाई ने अपने बच्चे वाला मेरी अंदर ले गए, मैं की करूं? अब मेरा बच्चा मैंने ले दो इतने में और मैं जब पेशाब भी कर देता मैंने नहीं दसा चुका फिर मेरे को रो के मांगता भाई मेरा बच्चा मैंने ले दो जड़ी कूदेगा मैंने ले दो मैंने नहीं कोई चीज चंगी लगती भाई मेरे घर मैं सारे घर नु आग ला दूं मैं मर जा। हाँ जी, उन दसो बाजी, खुश हो पुलिस ने कैसा काम मैं किया? बहुत खुश है। मैं अपने भाई पुलिस वाले तो बड़ा खुश है, उन्होंने मुझे ढूंढ के दिया मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा दसो कि बच्चा जो मिले है तो की सी दी हालत ठीक बहुत सी? अच्छी सी हालत, बहुत अच्छी सी, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत अच्छी सी इनकी हालत है। अच्छा हुण सारे फुल तुसी किदा वास्ते पुलिस वास्ते लेके आए सो? वास्ते लेके आए सा। चलो ए दिखाओ जी, मुकदमे के मुद्दई हैं जी ये रशीद साहब गालबन इनका नाम है, ये दादा भी हैं और मुकदमे के मुद्दई भी हैं। दसो जी बच्चा मिल गया, हुण किन्ने खुश हो? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨਵੀਦ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋਣਾ, ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे। बच्चे का वालिद भी है और यकीनन यही बच्चा है जो अगवा हुआ था। बताओ भाई, जी दस सुन के कितना कुछ खुश है बच्चे? बहुत लभदे ने खुश है अपना? भाईजान, नहीं लभदे। पुलिस वालियां दी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। लाहौर न्यूज़ वालियां दा भी जी, भाई नवीद दा भी बहुत शुक्रिया जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई, चलो आपने हमारा साथ दिया। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ हीनियस क्राइम की जब भी कोई खबर टेलीविज़न पर नशर होती है और मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसके फौरी बाद जो इन्वेस्टिगेशन विंग है यानी कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के जो पीआर डिपार्टमेंट है उसमें जो है वो एक मुतहरिक होने का तासुर जो है वो हमें मिलता है। जब ये बच्चा 3 साल का हरबंसपुरा के इलाके में अगवा होता है तो उसके बाद फौरी तौर पे पीआर डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो हमसे रब्ता करते हैं, फिर हम उनको सारी डिटेल बताते हैं कि यहाँ से हमें ख़बर मिली और ये सीसीटीवी फुटेज है, तो फिर कार्रवाई आगे कैसे चलती है। इसमें एक अहम किरदार जो है वो पीआर डिपार्टमेंट भी अपना अदा करता है। सब इंस्पेक्टर हैं और पीआरओ हैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के, उनके साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं जो पीआर डिपार्टमेंट में होते हैं। जैगम साहब से सबसे पहले बात करते हैं। जैगम साहब ये बताइएगा कि जब भी कोई हीनियस क्राइम की खबर टेलीविज़न पे चलती है तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या होती है, आप क्या करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जैसे कि एसओपी है डीजीपीआर की कि हमारी इस वक्त असाइनमेंट है कि एज ए पीआरओ टू डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन और ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन विंग का मैं पीआरओ हूँ, तो इसलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लाहौर में कोई भी वक़ूआ होता है जो मीडिया पे रिपोर्ट होता है तो हम उसकी सबसे पहले जो है वो एक उसको शॉर्ट करके और न्यूज़ बना के और हम अपने अफसरान को डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन को पेश करते हैं। वो
और उन्हें बताते हैं कि फ़लाँ इलाका में फ़लाँ इलाका थाना में ये इस नौइयत का मुकदमा जो है वो रिपोर्ट हुआ है और उसकी ये FIR दर्ज हो गई है। और उसके बाद फिर हमारी कोशिश होती है कि जिस तरह के ये स्पेसिफ़िक आपने फरमाया है कि ये बच्चे का एक अगवा का मुकदमा हुआ है, तो ये बड़ा सेंसिटिव नौइयत का केस होता है अगवा का। तो हम फौरी तौर पे हमारी कोशिश होती है कि अफसरान के नोटिस में ला कर और उन फैमिलीज़ को भी अप्रोच करें और उन्हें जो है वो हर तरह से ये इंश्योर करवाएं कि आपका जो है वो ग्रीवियंस उसको दूर किया जाएगा। तो उसके लिए पुलिस की टीमें तश्कील दे दी जाती हैं, क्योंकि हमने जब अफसरान के नोटिस में लानी है चीज़ तो फिर उसके बाद फिर एक पुलिस की जो पूरी एक हायरार्की है वो वर्किंग में होती है और वो एक टीमें तश्कील दे देते हैं और जो हेल्प आउट करती हैं केस को रिजॉल्व करने। ठीक है। अच्छा साकिब साहब, अगर हम इसी केस की बात करें तो थाना हरबंसपुरा में मुझे याद पड़ता है कि चंद माह का बच्चा पहले भी अगवा होता है और वो फ़रोख्त हो जाता है और उसको जब यहाँ पे लाया जाता है बच्चे को बाजियाब करवा के, तो बड़े वालदैन भी और दीगर लवाकिन जो है वो दुआएं भी करते हैं, यकीनन उसका हिस्सा आप भी बनते हैं। तो जब ये वाला केस बना तो ख़ासकर इसके लिए DIG साहब ने आपको एक्टिव रहने की भी हिदायत की? जी बिल्कुल, इसी तरह से जैसे कि आपने बताया 3 माह का एक बच्चा कुछ अरसा पहले हुआ अगवा और उसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ने अपनी पूरी प्रोफेशनल तरीके से उसको बाजियाब किया। तो कोई भी इस तरह का इंसिडेंट जब हो जाता है तो क्योंकि हम हर वक्त मीडिया के साथ इन टच रहते हैं और हमने जो है वो एक हम ब्रिज का काम कर रहे होते हैं अफसरान के और मीडिया के दरमियान, तो उसी तरह से ज़ाहिर है कि अफसरान हमें फिर ये हुक्म देते हैं कि आप इस केस को जो है ना वो सुपरवाइज़ भी करते रहें अपने तौर पर, और ख़ास तौर पे जो पुलिस है, मुतलका थाना है इन्वेस्टिगेशन, उनके साथ और जो लवाकिन हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, उनके साथ भी आप राब्ते में रहें और इसकी प्रोग्रेस को जो है वो चेक बैलेंस करते रहें। ठीक है। साकिब साहब, नदीम साहब को माइक दीजिएगा। नदीम साहब, आप बताएं कि जब बच्चे को लेके पुलिस यहाँ पे आती है और वालदैन खुश होते हैं, आप उनसे मिले भी, क्या जज्बात थे, क्या एहसासात थे उनके? जज्बात तो उनके देखने के काबिल थे। माँ जोलियाँ उठा उठा के दुआएं दे रही थी पुलिस को, बिलखसूस DI साहब इन्वेस्टिगेशन को, इमरान किश्वर साहब को, और जिस तरह उन्होंने पहले भी आई हैं, ये जब ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो पेश होने आई हैं। DI साहब ने उन्हें मिले भी हैं और पुलिस को भी फौरी बच्चा बाजियाब कराने का हुक्म दिया। लिहाजा उनके जज्बात तो काबिल तहसीन थे। ये था जी PR डिपार्टमेंट जो अपना किरदार अदा करता है जब भी किसी किस्म का ऐसा हीनियस क्राइम जो है किसी इलाके में होता है, तो फौरी तौर पे PR डिपार्टमेंट जो है वो अपने बॉस यानी कि DIG इन्वेस्टिगेशन के इल्म में तमाम बातें लेकर आते हैं और उसके बाद जो है वो लम्हा ब लम्हा तमाम चीज़ों को जो है फीडबैक दिया जाता है इनकी जानिब से और बताया जाता है कि अब केस की नोयत जो है वो किस तरफ जा रही है या इसमें कितनी इनको कामयाबी हो रही है। यकीनन ये शोबा भी जो है पुलिस की तरह, दीगर पुलिस की टीमों की तरह अपना एक अहम किरदार अदा करता है। बहुत ज़्यादा खुशी है जी। उस बार सुबह 7:30 बजे बंदा आया था, 7 बजे के करीब वो लेके चला गया था। हमें 7:30-8 बजे के करीब पता चला कि बच्चा को वो मुंडा लेके चला गया। ये तकरीबन 10-11 दिन बाद मिला। बस इतने ही कहेंगे कि अल्लाह पाक सबको तंदरुस्ती दा फरमाए, सबको बच्चों को वालदैन को महफूज अता फरमाए। हम मोहल्लेदार हैं बच्चे की। वैसे तो बच्चा बस घर से बाहर निकला तकरीबन 7-7:30 बजे, तो वो आदमी है उसने मतलब कि उठा लिए और लेके चला गया। मोहल्ले के CCTV देखे हैं, उनमें से कुछ पता चला है कि बच्चा हमारा गवाह हो गया। तो तकरीबन मुगलपुरा और बंसपुरा ठोकर तक जो है ना कैमरे देखे हैं पंजाब पुलिस वालों ने। इन्होंने बहुत कोशिश की हमारे साथ, तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा बच्चा जो है ना 10-11 दिन बाद मिल गया। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी और पंजाब पुलिस का भी, हम शुक्रिया अदा करने इधर आए। 6-7 का टाइम था, वो है आदमी, बच्चे बाहर खेल रहे थे, उसने उठाया और लेके चला गया। मुगलपुरे से
वो बैठा है ठोकर वाले रिश्के और ठोकर से गायब हो गया। भाई नवीद है ASI, उसने बहुत कोशिश की है, उसकी मेहरबानी शुक्रिया, उसने ढूंढ के दी। मम्मा ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, मम्मा दूध लेने चली गई तो वो पीछे से उसने पकड़ के भाग गया। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਭਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਦਿੱਤਾ, शुक्रिया। ਅਸੀਂ तो ये कहने हैं कि उनका माँ बाप जो है अपने बच्चे जो पैदा किए हैं उनका वो ख्याल करन और उन्होंने परवरिश अच्छी करन और बाहर ना निकलन दें, जो स्कूल छोड़ के भी आए, स्कूल से लेके भी आए। साढ़ा तो बच्चा यार ना 7:30 बजे ना चौं गया, गुम हो गया जी। तो जी असी आदि साड़ी इन्नी को ज़िंदगी हो गई है, 35-36 साल उम्र हो चुकी है। जो भी बच्चे गवाचते न ज़िंदगी हो गई है, सानू ना बच्चा पिछा वापसी मिलिया नहीं है। आ पहला चैनल सगा पुलिस पंजाब का सानू बच्चा लभ ते दिखाया जिंदा। तो शुक्रिया मेहरबानी भाई जी इन्हां दी, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि जब एक माँ का बिछड़ा हुआ या अगवा हुआ बच्चा मिलता है तो वो कितनी खुश होती है। उसके साथ साथ पुलिस एहलकार जब इस तरह के हीनियस क्राइम के केस को हल कर लेते हैं वो कितने खुश दिखाई देते हैं। सब कुछ आपको दिखाया आज के इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।